Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, in the last class we completed with our chapter 3 Homes of Living Beings, right? So today we will start with our chapter 4, which is Water, a Wonderful Liquid. So without wasting time, let's start. So this is our chapter 4, Water, a Wonderful Liquid. So water everywhere. पानी हर जगह होता है. We need water to drink, we need water to bath, we need water to wash our clothes. So water is our basic need, right? We can't live without water. So today we will learn about the water, जो हमारी बेसिक नीड है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते. You know, our body also contains 70% of water. So without water we can't survive. आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. अ वंडरफुल लिक्विड. वाटर एक लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर. जस्ट बिकॉज वाटर सॉलिड फॉर्म में भी पाया गया जाता है. आप सबके घर में आइज़ होती है, आपने देखी है. सो आइज़ इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. लिक्विड फॉर्म तो आपको पता ही है. द वाटर वी ड्रिंक इज इन लिक्विड फॉर्म. जो रिवर्स, लेक, सब में लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है. एंड वाटर ऑल्सो फाउंड इन द गैशियस फॉर्म. गैशियस फॉर्म में कैसे? जब हम वाटर को बॉयल करते हैं या फिर हम किसी भी चीज़ को अगर बॉयल करते हैं, सो हीट की वजह से वो जो स्टीम बनती है, वो स्टीम होते हैं वाटर वेपर्स. उन्हें हम वाटर वेपर्स बोलते हैं, विच इज़ द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट दीज वेरियस फॉर्म्स and many other things about the water. So let's start. A wonderful liquid, water. Life on earth is not possible without water. It is used in our daily life. We use water for drinking and cooking food. We take bath in water. We wash our clothes and utensils in water. Plants also need water to grow. They take water from the soil. Water is a wonderful liquid as it can be seen as solid, liquid, or gas. Let us find out the three forms of water. Activity 1. Take a glass of water and keep it in the freezer of a refrigerator. Open the freezer after an hour. Water in glass changes into ice. The changing of liquid water into solid ice is called solidification. Ice is the solid form of water. It has a definite shape and occupies space. Now keep this ice in the room. After some time, ice will change into liquid water again. This process is known as melting. Now, boil this liquid water in a pan. What do you see? Liquid water changes into water vapor or steam. This is the gaseous form of water. The process of changing liquid water into steam or water vapor is called evaporation. Cool the steam by placing a plate over it. You will get liquid water again. The process of changing water vapor into liquid is called condensation. Evaporation of water occurs all the time in nature. It is faster on very hot sunny days. The clouds are formed due to evaporation of water from lakes, rivers and oceans. When water vapor condenses, it comes down as rain. The cycle of evaporation and condensation in nature is called water cycle. There must be some properties of water that make it so important in our daily life. What are these properties? Let us see. Water has no color. It is tasteless.
It has no smell. Water exists in all the three states in nature, that is, ice, liquid water, and water vapor. It can change from one state to another very easily. So as you learnt about the various forms of water, solid form, liquid form and gaseous form, you also learnt about the water cycle and the various properties of water. So now we will read about them. Like food and home, water is another basic need of all living beings. जैसे फूड और होम हमारी बेसिक नीड है, वैसे ही वाटर भी हमारी बेसिक नीड है, विदाउट विच वी कांट सर्वाइव. इट इज़ द प्रीशियस गिफ्ट गिवन टू अस बाय नेचर. वाटर प्रीशियस गिफ्ट है जो हमें नेचर ने दिया है, जस्ट बिकॉज वाटर इज़ इन नेचर. अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर. जो हमारी अर्थ है उसका 71% सरफेस किससे कवर है? वाटर से कवर है. वाटर इज़ मस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वी कांट लिव विदाउट इट. देयर इज़ अ फैक्ट फाइल ऑल्सो. आउट ऑफ द टोटल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस 97% इज़ सॉल्ट वाटर एंड ओनली 3% वाटर इज़ प्योर. सी, जो 71% वाटर अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है उसमें से 97% सॉल्ट वाटर है, मतलब खारा पानी है. एंड ओनली 3% वाटर इज़ प्योर. जो 3% है वो ही हम पी सकते हैं, खारा पानी हम नहीं पी सकते. सो जो 3% वाटर है विच इज़ प्योर, विच इज़ हेल्पफुल फॉर अस, राइट. सो नाउ द फॉर्म्स ऑफ वाटर. Water exists in three forms: solid, liquid and gas. Gas in water vapor. Solid form. Solid form क्या होती है वाटर की? Ice. Ice is a solid form of water. Ice सबको पता है, सबके घर में होती है ice. And we can easily change the liquid form of water in the solid form. हम लिक्विड फॉर्म को ही सॉलिड फॉर्म में करते हैं. हम वाटर रखते हैं अपने फ्रीजर में और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. सो लिक्विड फॉर्म हम रखते हैं अपने फ्रिज में और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. इन कोल्ड रीजन्स एंड ऑन माउंटेन्स वाटर गेट्स फ्रोजन. इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू आइस. जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, कोल्ड प्लेसेस होते हैं, और माउंटेन्स में ज़्यादातर वाटर फ्रोज़न हो जाता है, जम जाता है. इट चेंजेस द लिक्विड टू आइस. Ice is the solid form of water. Ice has a definite shape. It is lighter than water. That is why it floats on the water. See, ice has a definite shape. हम liquid form of water किसी भी shape में, किसी भी shape के बर्तन में डाल के फ्रीजर में रखते हैं तो वो जो solid form आती है water की, वो जो ice जमती है वो उसी shape में आ जाती है. So ice has definite shape. उसकी shape हो जाती है ice की. एंड इट इज़ लाइटर देन वाटर. जब आप आइस को कोल्ड ड्रिंक्स में डालते हैं या पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वो फ्लोट करती है. सो जस्ट बिकॉज इट इज़ लाइटर. उसका बिल्कुल भी वेट नहीं होता. दैट इज़ वाई इट फ्लोट्स ऑन द वाटर. सो आइस हैज़ अ डेफिनेट शेप. इट इज़ लाइटर देन वाटर एंड इट फ्लोट्स ऑन वाटर. एंड आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, राइट. So now the liquid form of water. Water is found everywhere in liquid form. It has no fixed shape and it flows like any other liquid. Liquid form जो water होता है वो तो हर जगह ही पाया जाता है. उसकी कोई definite shape नहीं होती. आप liquid form को जिस भी utensils में डालते हैं वो वही shape ले लेता है, right? So it has no fixed shape. It flows like any other liquid. ये कहीं पे भी बह सकता है. So this is about the liquid form of water. Now the gaseous form, water vapors. Water vapors क्या होते हैं? Steam or water vapor is the gaseous form of water. It has no particular shape. Water vapors की भी कोई particular shape नहीं होती. ये जो steam बनती है जब भी हम heat करते हैं, किसी भी चीज़ को boil करते हैं, टेम्परेचर की वजह से वो जो steam बनती है वो water vapors होते हैं हमारे, which is the gaseous form of water. इन्हें हम water vapors कहते हैं. ओके. So
दिस इज़ अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वाटर, सॉलिड फॉर्म आइस, लिक्विड फॉर्म सबको पता है जो नॉर्मल वाटर होता है वही लिक्विड फॉर्म होती है वाटर की, गैशियस फॉर्म जो वाटर वेपर्स होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वाटर. देयर इज़ अ फैक्ट फाइल. Water is the only substance on the earth which occurs in three forms: solid, liquid and gas. See, water एक ऐसा substance है जो अर्थ में तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी एंड गैशियस फॉर्म में भी. ओके, तो कीप दैट थिंग इन माइंड. ओके, सो मूविंग फर्दर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर चेंजेस इट फॉर्म्स. सी, वाटर अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वी कैन ईजली कन्वर्ट द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इन द सॉलिड फॉर्म एंड इन गैशियस फॉर्म. हम अगर लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर को फ्रीजर में रख देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, आइस बन जाती है. एंड इफ़ यू बॉयल द वाटर जस्ट बिकॉज ऑफ हीट, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम आ जाती है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं. सो वाटर कैन ईजली चेंजेस इट फॉर्म्स. Water changes its forms when we heat or cool it. When we heat water for a long time, it starts boiling and changes into steam. जब भी हम वाटर को ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए बॉयल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं उसके, राइट. इफ़ वी कूल दिस स्टीम इट चेंजेस इन बैक इनटू वाटर. अगर हम उस स्टीम को कूल डाउन कर देते हैं, हम सपोज़ हमने वाटर को बॉईल करा, स्टीम आ गई है, वाटर वेपर्स बन गए हैं, हमने गैस बंद कर दी, फिर उसको ठंडा रखने के लिए छोड़ दिया, तो वो फिर से लिक्विड फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है अपनी, राइट. सिमिलरली इफ़ यू कूल और फ्रिज लिक्विड वाटर इन द रेफ्रिजरेटर इट चेंजेस इनटू आइस. ऐसे ही जब भी हम वाटर को कूल करते हैं, उसे फ्रीज करते हैं, तो वो कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में. किस में, आइस में. इफ़ वी हीट दिस आइस इट चेंजेस बैक इनटू वाटर. अगर हम उसी आइस को सपोज़ किसी यूटेंसिल्स में हम आइस डाल दें और फिर उसे हीट करें तो किस में चेंज हो जाएगा, वो वाटर में चेंज हो जाएगा अगेन. सो वाटर कैन ईजली चेंजेस इट फॉर्म्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड एंड लिक्विड टू गैशियस फॉर्म, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर. Now moving further, so now we will learn about the water cycle. See, water is everywhere. वाटर हर जगह होता है, ओशन, पॉन्ड, लेक, रिवर्स, इन सब में लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है. एंड वट सन गिव्स अस हीट. सो एज वी लर्न दैट ड्यू टू हीट द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर कन्वर्ट्स इनटू गैशियस फॉर्म. जो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर होता है वो हीट की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैशियस फॉर्म में, वाटर वेपर्स बन जाते हैं. सो ये जो प्रोसेस होता है ओशंस और लेक रिवर्स में, ये जो वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, वो सन की हीट की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं. सो वो जो प्रोसेस है दैट चेंजेस ऑफ वाटर ड्यू टू हीट इनटू वाटर वेपर्स, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, राइट. एंड ये वाटर वेपर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं इन एयर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी यूटेंसिल में जब वाटर बॉईल करते हैं तो हीट की वजह से वो जो स्टीम क्रिएट होती है, वो जो गैशियस फॉर्म में वाटर बनता है, तो वो स्टीम कौन सी डायरेक्शन में जा रही होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है एयर में, राइट. वाटर वेपर्स को हम देख तो सकते नहीं, पर वो जो भाप होती है पानी की, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है एयर में. सो ऐसे ही ये जो ओशंस, लेक में सन की हीट की वजह से वाटर गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है. इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं. और वाटर वेपर्स अपवर्ड डायरेक्शन में स्काई में जाते हैं और क्लाउड फॉर्म करते हैं. क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड. वाटर वेपर्स की वजह से बादल बनते हैं और वो बादल बारिश करते हैं. क्यों, वाटर वेपर्स दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया कि आप किसी भी बर्तन में वाटर बॉईल करते हैं तो हीट की वजह से वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है. सो अगर आप उसे कूल डाउन करने के लिए रख दें और उसके ऊपर प्लेट ढक दें, वो स्टीम एयर में नहीं जाएगी, वो उसी यूटेंसिल के अंदर रहेगी अगर आप प्लेट ढक देंगे तो, राइट. सो जब वो कूल डाउन होएगा उसका टेम्परेचर वाटर का, तो वो जो
कूल डाउन होने की वजह से वो जो वाटर वेपर्स हैं जो हमें दिख नहीं रहे थे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप प्लेट हटा के देखेंगे तो प्लेट के पीछे पानी होगा। वो क्यों होगा? जस्ट बिकॉज वो जो वाटर वेपर्स थे, वो जो स्टीम थी, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई टेम्परेचर के डाउन होने की वजह से। तो ऐसे ही ड्यू टू इवेपोरेशन व्हेन वाटर वेपर्स गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन इन द एयर एंड कंबाइन टू फॉर्म अ क्लाउड, वाटर वेपर्स कंबाइन होते हैं और क्लाउड फॉर्म करते हैं, और टेम्परेचर डाउन जब होता है तो वो वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेन होती है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चेंजेस ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड फॉर्म इज़ कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑलवेज कंटिन्यू, ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं हम? वाटर साइकिल। सो water is found in ocean, sea, spelling of sea is wrong। क्या होती है sea की spelling? SEA, right? Sea, rivers and lakes on the surface of earth. This water gets heated by the sun and changes into water vapor. This process is called evaporation. Sea, ocean, seas, lakes, इन सब में वाटर पाया जाता है। and when this water get heated by the sun, जब वो सन की वजह से गर्म होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। द वाटर वेपर कंबाइंस टू फॉर्म क्लाउड ऑन रीचिंग हायर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। व्हेन दैट वाटर वेपर कंबाइन, जब वो कंबाइन होकर अपर डायरेक्शन में स्काई में जाते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं? क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। एंड उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। व्हेन दीज क्लाउड्स बिकम बिगर एंड हैवियर दे कम बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। जब वो क्लाउड्स बिग हो जाते हैं और हैवी हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज बहुत सारे वाटर वेपर्स वहाँ ऊपर जाके कंबाइन हो जाते हैं, तो वो क्लाउड हैवी हो जाते हैं। सो उसकी वजह से क्या होती है? फिर रेन होती है, बारिश होती है। सो दिस इज़ आवर वाटर साइकिल, जो हमेशा चलती रहती है। When it rains, water gets collected in rivers, lakes, ponds and ocean. From there it gets evaporated again and the process continues. जब बारिश होती है तो वाटर फिर से रिवर्स, लेक, पोन्स, ओशन में इकट्ठा हो जाता है एंड फिर से इवेपोरेशन होता है, जस्ट बिकॉज सन तो रोज ही आता है। सो इवेपोरेशन होता है और फिर से कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। सो ये वाटर साइकिल हमेशा चलती रहती है। This natural process of conversion of liquid water into water vapor and after condensation of water vapor in the form of rain is called water cycle. So ये जो natural process है, ये natural process ही है क्योंकि हमारे नेचर में है। ओशियन, लेक, सीज और सन, ये सब नेचुरल है। इवेपोरेशन नेचुरली हो रहा है सन के द्वारा एंड कंडेंसेशन हो रहा है। सो वाटर साइकिल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। So this natural process of conversion of liquid water into water vapor, पहले evaporation होता है, liquid water किस में convert होता है? water vapor में, and after condensation of water vapor in the form of rain, फिर वो जो condensed water होता है वो rain की form में होता है, उस process को हम water cycle बोलते हैं। Some part of rain water goes underground. This underground water is taken out through wells and hand pumps. कुछ रेन वाटर अंडरग्राउंड चला जाता है और उसे हम किसकी मदद से? वेल और हैंडपम्प की मदद से लेते हैं। दिस अंडरग्राउंड वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय द प्लांट्स। अंडरग्राउंड वाटर प्लांट्स के भी यूज़ में आता है, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वाटर साइकिल। आई होप यू गेट दिस। सो देयर इज़ अ फैक्ट फाइल। द वर्ल्ड्स रेनिएस्ट प्लेस इज़ माउंट वायले इन हवाई, USA। It rains 350 days a year here. सी, ये जो माउंट वायले हवाई में है, USA में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। साल में 365 डेज़ होते हैं, वहाँ पे 350 डेज़ तक बारिश होती है। सो वो वर्ल्ड रेनिएस्ट प्लेस है। एंड द वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस इज़ मौसेनराम, मेघालय, इंडिया। इट गेट्स अबाउट 11,770 millimeter rain every year.
सी ये वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस कौन सा है? मोसेनराम, मेघालय, इंडिया में। यहाँ पे 11,770 मिलीमीटर रेन होती है हर साल। सो दिस इज़ द फैक्ट फाइल। नाउ लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आर, फर्स्ट, वाटर हैज़ नो शेप। वाटर की कोई शेप नहीं होती। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी बर्तन में, किसी भी यूटेंसिल में वाटर को डालते हैं वो उसी की शेप में आ जाता है। सो इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, नो फिक्स्ड शेप। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। वो जिस कंटेनर में डालते हैं वाटर को वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ वाटर कैन फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। से आपने झरने देखे होंगे, ऊपर से वाटर गिर रहा होता है और वो नदी में कैसे लोअर लेवल पे आ जाता है। सो वाटर कैन चेंजेस इट्स फ्लो वेरी इजली हायर लेवल से लोअर लेवल तक। वाटर हैज़ नो कलर, नो स्मेल एंड नो टेस्ट। वाटर में कोई कलर नहीं होता, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कोई स्मेल नहीं होती उसमें और ना ही कोई टेस्ट होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ वाटर कैन बी प्योर्ड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर। वाटर को हम ईज़िली किसी भी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल सकते हैं। सो इट कैन बी ईज़िली प्योर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर कि वाटर की कोई शेप नहीं हो सकती, वो कहीं पे भी हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो कर सकता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, स्मेल नहीं होता, टेस्ट नहीं होता, एंड वी कैन ईज़िली प्योर वन कंटेनर इन अनदर कंटेनर वाटर, राइट। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है? वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये हमारी बेसिक नीड है वाटर, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। फर्स्ट, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। हमें सारे पर्पज़ के लिए वाटर चाहिए होता है, पीने के लिए, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए। सेकेंड इज़ वाटर इज़ असेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन मीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड की ग्रोथ के लिए वाटर की नीड होती है, अदरवाइज प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे विदाउट वाटर? सो वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। थर्ड वन इज़ वाटर प्रोवाइड्स होम टू मैनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। एक्वेटिक मीन्स जो जिन्हें पानी की जरूरत होती है, जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में ग्रो करते हैं, पानी में रहते हैं, लाइक लोटस, वाटर लिली, फिश, टर्टाइल, सी हॉर्स, क्रोकोडाइल, ऑक्टोपस एक्सेट्रा। फोर्थ वन इज़ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन ऑफ फील्ड्स। इरीगेशन क्या होता है? जैसे फार्मर्स होते हैं वो लैंड कल्टीवेट करते हैं, खेती करते हैं, वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं अपने लैंड में। सो उनकी क्रॉप की ग्रोथ के लिए वाटर की नीड होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो विदाउट वाटर क्रॉप्स कांट ग्रो। सो जो वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड, उस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। जो हम वाटर देते हैं अपने क्रॉप्स को फील्ड में, उस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। सो वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन ऑफ फील्ड्स। फिफ्थ वन इज़ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में भी काम आता है। वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। वाटर इज़ हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हमें कम से कम एक दिन में 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कि वाटर की हमारी क्या इंपॉर्टेंस है। दिस इज फैक्ट फाइल। कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सी जैसे रेन होती है, सो जो रेन वाटर हम कलेक्ट करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। सो मूविंग फर्दर, हाउ टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन द फॉलोइंग वेज। वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन यूटेंसिल्स। जो हमें पीने का पानी है वो कैसे स्टोर करना चाहिए? हमें क्लीन यूटेंसिल्स, साफ बर्तनों में उसे स्टोर करना चाहिए। द यूटेंसिल शुड बी केप्ट कवर्ड, उसे ढक के रखना चाहिए। थर्ड वन इज़ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर्ड बिफोर यूजिंग इट। जो ड्रिंकिंग वाटर है हमें उसे फिल्टर करके पीना चाहिए। वाटर पोल्यूशन। Falling of water by many human activity is called water pollution. Falling means जो human activities की, dirty means polluted. Falling means polluted. Polluted of water
बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर पोल्यूट होता है, गंदा होता है, उसको वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। द वाटर डिज़ोल्व्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वाटर के अंदर सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। सो इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स की कई एक्टिविटीज़ में काम आता है, जैसे कि हमने पढ़ा when we throw garbage in water or chemicals are drained by factories in the water sources like rivers and lakes, then it makes the water polluted। जो फैक्ट्रीज़ में गार्बेज होता है वो वाटर में अगर चला जाता है, वो केमिकल्स वाटर में चले जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, वाटर गंदा हो जाता है। इट इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। जो हार्मफुल होता है प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए, एज वेल एज़ फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। सो हमें वाटर कभी भी पोल्यूट नहीं करना चाहिए और ना ही कभी वाटर को वेस्ट करना चाहिए। अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बिकॉज इट इज़ वेरी प्रीशियस। फर्स्ट वन, वी शुड टेक एज मच वाटर एज वी नीड। हमें उतना ही पानी लेना चाहिए जितना हमें चाहिए होता है, हमारी नीड होती है। वी शुड प्रिवेंट ओवरफ्लोइंग एंड लीकेज ऑफ पाइप्स एंड टैंक्स। जो लीकेज हो रही होती है या फिर ओवरफ्लो हो जाते हैं टैंक्स, हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। वी शूड टर्न ऑफ टैप्स इमीडिएटली व्हेन नॉट इन यूज़। अगर टैप्स खुली हुई हैं और हम उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं वाटर का, तो हमें उसे इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। वी शुड मेक इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर वाइल टेकिंग बाथ और वॉशिंग क्लोथ्स। इट मीन्स हमें हमेशा वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए, मीन्स उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे सेव करना चाहिए जब हम बात ले रहे होते हैं और अपने क्लोथ्स वॉश कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेस्टेज ऑफ वाटर, कि हमें वाटर की वेस्टेज अवॉइड करनी चाहिए। यू ऑल्सो लर्न अबाउट द वाटर पोल्यूशन, कि हमें वाटर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, हमें ड्रिंकिंग वाटर को कैसे स्टोर करना चाहिए। वी ऑल्सो लर्न द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर and its importance. We also learned the water cycle, about the process of evaporation and condensation, right? We also learned the various forms of water, solid, liquid and gaseous. So this is all about your chapter 4, water, a wonderful liquid.